آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے، خدا کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے تیار ہوں گے۔ اور آج جب خاص کلام ہے کہ عید سعود کے متعلق، عید سعود المسیح کے متعلق آج کا کلام ہوگا، اور جب پوری دنیا میں آج اس عید کو اسینشن آف جیزس کرائسٹ، اس عید کو جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آج اسٹڈی بھی دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھا، کیوں why it is important that Jesus will raise from the dead، اور نہ صرف یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے بلکہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کو نکالے میرے ساتھ، آئے میرے ساتھ خدا کے کلام کو نکالیں گے۔ اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں سے تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس کو نکال لیں، اعمال اس کا پہلا باب اور تیسری آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو یسوع مسیح کی خدمت وہاں پر ختم نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح 40 دن تک زمین پر رہے، اور جب زمین پر 40 دن تک رہے اور اس کے بعد یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، یسوع مسیح ریپچر ہو گئے، یسوع مسیح ڈسپیر نہیں ہوئے، لیکن یسوع مسیح کا ریپچر ہوا، یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اعمال پہلا باب ہی اور اس کی اگر ہم 9ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے شاگردوں کو یسوع مسیح پیغام دے رہے تھے، بتا رہے تھے، اور یہ دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ بادلوں میں یسوع مسیح جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر کیا ہوا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے، شاگرد نیچے آسمان کو دیکھ رہے تھے، یسوع مسیح کو جاتے دیکھ رہے تھے، تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس ہے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ شاگرد یہاں پر موجود تھے اور یسوع مسیح ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلے گئے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 5 ایسی باتیں کہ کیوں یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا جو تھا وہ کیوں ضروری تھا، کیوں اسینشن آف جیزس کو مناتے ہیں۔ What is the purpose for this celebration؟ یہ جو سیلیبریشن ہے، صرف سیلیبریشن ہمیں جو ہے وہ کرسمس کی ہی صرف نہیں کرنی، سیلیبریشن صرف ہمیں عید قیامت المسیحی کی نہیں کرنی، بلکہ یہ بہت ہی ایک اہم ایونٹ ہے اور ایک اہم مقام ہے جو بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، جو ایک بائبل کی ہسٹری کا ایک اہم ایونٹ ہے جب یسوع مسیح آسمان پر گئے۔ اب یہ کیوں ضروری تھا یسوع مسیح کا آسمان پر جانا؟ پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ یسوع مسیح کا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت زمین پر ختم ہو چکی تھی، اور اب یسوع مسیح کو آسمان پر جانا تھا۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور 28ویں آیت میں ہم پڑھیں گے۔ یسوع مسیح کی انجیل جو یوحنا کی معرفت لکھی گئی اس کا 16واں باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ باپ سے یسوع مسیح آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک مقرر وقت کے مطابق باپ کے پاس یسوع مسیح کو جانا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو۔ یسوع مسیح یہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس
ऊपर जाता हूं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहां पर हम इन दोनों आयात में देखते हैं कि यीशु मसीह को बाप के पास जाना था, यीशु मसीह को उस ट्रिनिटी में दोबारा जाना था, क्योंकि अजल ही से हम उस ट्रिनिटी को देखते हैं, उस तसलीस को देखते हैं। इब्तिदाओं की इब्तिदा से खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस एक थे। और फिर एक वक्त आया कि जब यीशु मसीह को जमीन पर भेजा गया ताकि दुनिया के और मेरे और आपके सबके गुनाहों को मिटाने के लिए यीशु मसीह को जमीन पर आना पड़े, लेकिन दोबारा फिर जो है यीशु मसीह को आसमान पर बाप के पास जाना था। इसलिए यीशु मसीह, इसलिए हम असेंशन ऑफ जीसस जो है कॉट अप इन द एयर, यीशु मसीह जो है वो आसमान पर चले गए, जिंदा आसमान पर चले गए, इसलिए इस सेलिब्रेशन को हम मनाते हैं। दूसरी बात, अगर आप लिखना चाहते हैं, दूसरी बात गीता हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से दानियल की किताब 7वां बाब है और 13वीं और 14वीं जब आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह को इस प्रोफेसी को पूरा करना था जो खुदा ने दानियल की बाबत जो है वो कलाम को किया था। यीशु मसीह को अपने तख्त पर बैठना था। जमीन पर यीशु मसीह का तख्त नहीं था। यीशु मसीह का तख्त जो है वो आसमान पर है। यीशु मसीह को अपने तख्त पर बैठना था। अगर आपने पढ़ना है तो दानियल उसका 7 बाब और 13-14 आयत को पढ़े। और रोया में, ये रोया जो है खुदा दानियल को दिखा रहा है, दानियल नबी को ये रोया दिखा रहा है और वो ये कहता है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मत और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दुल आबाद सल्तनत है और जो जाने की नहीं, जो नहीं जाएगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। ये खुदा का कलाम कहता है, ये यीशु मसीह के मुतालिक है। ये प्रोफेटिक वर्ड खुदा ने जो है वो दानियल को दिए। दानियल 7 बाब 13-14 आयत में पढ़ते हैं। मुकाशवा 3:21 में अगर आप पढ़ ले तो वहां पर भी हमें नजर आता है कि यीशु मसीह को अपने तख्त पर बैठना था, इसलिए यीशु मसीह को जिंदा आसमान पर जाना हुआ, इसलिए यीशु मसीह का रैप्चर हुआ। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को क्यों आसमान पर जिंदा जाना था, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं इस ईद साउद को, ईद साउद अल मसीह को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह को रूह कुद्दुस को जमीन पर देना था। बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है, यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में हम पढ़े और 16वां बाब 7वीं आयत में पढ़े। इमाल 2 बाब 32 और 33 आयत में पढ़े, हमें नजर आता है। और यूहन्ना की इंजील में मैं पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 14 में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। रूह कुद्दुस के मुतालिक दुनिया नहीं जानती। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये तोड़ा है, ये खुदा की तरफ से नेमत है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह को जाना था आसमान पर, अपने तख्त पर बैठना था और फिर रूह कुद्दुस का नुज़ूल जमीन पर होना था। रूह कुद्दुस साथ तो था लेकिन रूह कुद्दुस अंदर नहीं था। रूह कुद्दुस का अंदर होना बहुत जरूर था और उस अंदर जो रूह कुद्दुस हमारे अंदर है वही हमें तकवीयत देता है, हमारी जिंदगी को हमें बताता और सिखाता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि यीशु मसीह को क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। ईद अल मसीह जो ईद साउद हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पहली बात मैंने बताई कि यीशु को बाप के पास दोबारा पहुंचना था, जाना था। दूसरी बात, यीशु मसीह अपने तख्त पर जो है उनको बैठना था। तीसरी बात कि रूह कुद्दुस का नुज़ूल होना था, जो आगे हम कुछ दिनों के बाद रूह कुद्दुस के नुज़ूल की ईद को सेलिब्रेट करने वाले हैं और वो काम होना था। चौथी बात जो है, यीशु मसीह आसमान पर अब क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं और मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8 बाब उसकी 34वीं आयत में। अगर आप कलाम मुकद्दस को निकाल सकते हैं, रोमियो 8 बाब 34वीं आयत में लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया
बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हमारी शिफायत करता है। खुदावंद यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठे अपने लोगों की शिफायत करता है, जो उसके खून खरीदे हैं, जो उसके बर्रे के लहू से धुले हैं। जितनों ने उन्हें कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। इसलिए यीशु मसीह आसमान पर गए ताकि मेरी और आपकी शिफायत बाप से हो सके। ये ईद सऊद का मकसद है, ये यीशु मसीह के आसमान पर जाने का मकसद है। पहला यूहन्ना 2 बाब पहली आयत में भी यही लिखा है। और इसलिए यीशु मसीह आसमान पर है ताकि हमारी शिफायत करते हैं। पांचवी बात और आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, यीशु मसीह क्यों आसमान पर है? ताकि दोबारा यीशु मसीह वापस आ सके। यीशु मसीह इसलिए आसमान पर है। ईद सऊद को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और पहली से 3 आयत तक हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब पहली से 3 आयत तक कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता तुमसे। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इसलिए यीशु मसीह आसमान पर मौजूद है और वो जल्द आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। टेम्पररी तौर पर अभी यीशु मसीह जो है वो जमीन पर थे पहले, फिर यीशु मसीह आसमान पर गए और फिर अपनी कलीसिया को लेने के लिए जमीन पर आने वाले हैं, ताकि हमेशा के लिए अपनी कलीसिया को अपने साथ रख सके, अपने लोगों को। ये 5 ऐसी बातें हैं। पहली बात, यीशु मसीह क्यों जो है वो आसमान पर, ईद सऊद को हम क्यों मनाते हैं? व्हाई वी सेलिब्रेट द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्योंकि पहली बात, यीशु मसीह को बाप के पास होना था दोबारा से। दूसरी बात जो है, यीशु मसीह को अपने तख्त पर बैठना था। और तीसरी बात जो है, यीशु मसीह का नजूल, जो रूह कुदस का नजूल है वो होना था, क्योंकि यीशु मसीह जाएंगे और रूह कुदस को भेजेंगे। और चौथी बात जो है, यीशु मसीह शिफायत आसमान पर बैठे यीशु मसीह मिनिस्टर कर रहे हैं, शिफायत कर रहे हैं मेरे और आपके लिए। और पांचवी बात, यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं। ये मकसद है हम ईद सऊद को सेलिब्रेट करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मुझे आज के इस कलाम से बहुत बरकत मिली है। मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिली है। और मैं कहना चाहती हूँ एक बात जो मैं देख रही थी कि जब रूह कुदस नाज़िल होगा, कलाम में लिखा है कि तुम कुव्वत पाओगे। खुदावंद ने हमें रूह कुदस जो है, जब खुदावंद आसमान पर उठाए गए हैं 40 दिनों के बाद जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, कब्र में से जिंदा हुए, तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर 40 दिन के बाद उठाए गए। और खुदावंद ने वादा किया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारा मददगार जो है वो भेजूं। अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जमीन पर रहते तो हमें जो है रूह कुदस जो है वो ना मिलता। तो खुदावंद ने कहा कि जो बाप ने वादा किया है वो मैं तुम्हें दूंगा। बाप ने वादा किया है, लेकिन देने वाला जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह जो है जब आसमान पर गए हैं तो बहुत जो है आसमान पर जो है वो खुशी मनाई गई है, क्योंकि जो खुदावंद का जलाल पहले था, इस जमीन पर आने से पहले खुदावंद का जलाल आसमान पर था, वही जलाल जो है उनको वापस मिला। फरिश्तों ने जो है वो खुशी मनाई, वही जलाल जो है विक्ट्री के साथ खुदावंद जो है वो वापस जो है वो आसमान पर गए। तो खुदावंद ने जो है हमें वो इख्तियार दिया जो शैतान ने जो है वो हमसे चुरा लिया था। बाग अदन में आदम और हवा ने जो है चुरा लिया था हमसे बाप का रिलेशनशिप जो है। खुदावंद ने इस दुनिया में आकर जो है सलीब पर कुर्बान होकर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ बहाल किया, ताकि हम उसको बाप कहकर पुकार सकें। और खुदावंद का फजल का जो दौर है वो शुरू हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह जब अब आसमान पर है तो अब दोबारा जो है वो वापस आने को है। कलाम में जैसे लिखा, हमने सुना कि कलाम में लिखा है कि यीशु को गलीली मर्दों, खुदावंद ने, 2 फरिश्तों ने, आदमियों ने आकर कहा कि क्यों जो है आसमान की तरफ तुम देख रहे हो गलीली मर्दों, जिसको तुम अभी देख रहे हो वही आसमान से फिर दोबारा जो है वापस आने को है, यहाँ से जो है वो वापस आएगा खुदावंद। और हमें तैयार होना है। आज हमारी जिम्मेदारी है, जब खुदावंद यीशु मसीह जो है आने वाले हैं जल्द। ये हम देख रहे हैं दुनिया में सारी चीज़ें जो
جو ہو رہی ہیں, وبائیں آئی, طوفان, قوم پر قوم جو ہے وہ چڑھائی کری, جو خداوند نے تمام وعدے کیے ہیں وہ جو ہے کہ پروفیسیز خداوند نے کی کہ ایسا جو ہے اینڈ ٹائم میں ہونے کو ہے, تو آخر وقت میں ابھی وہی سب کچھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا, انڈیا کا, یہاں کا, ہمارے ناروے کا جو ہے موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے, خداوند نے کہا کہ آسمان کی قوتیں جو ہیں وہ ہلائی جائیں گی. اس کا یہی مطلب ہے کہ موسم جو ہے وہ چینج ہوں گے. تو جلد خداوند کی آمد بہت قریب ہے میرے بھائی میری بہن. تو اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تو آج بھی یہ موقع ہے, آج کا ہی یہ دن ہے جو کہ نجات کا دن ہے. میری بہن میرے بھائی آج خداوند کو اپنی زندگی دے دیں, اور تاکہ جب وہ بادلوں پر جو ہے واپس آئے, جس طرح وہ واپس گیا تھا بادلوں پر, خداوند واپس گیا تھا آسمان پر, اسی طرح خداوند واپس آنے کو ہے بادلوں پر. خداوند آپ کو اور مجھے جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے, آمین. اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جائے, اور اس دلہن میں نہ کوئی جھری ہو نہ کوئی داغ ہو. اس بات کا ہم نے یقین رکھنا ہے, اس بات پر ہم نے بھروسہ رکھنا ہے, اس بات پر جو ہے وہ ہم نے سوچتے رہنا ہے کہ کیا میں جو ہوں, میں خداوند کی جو دلہن ہوں, میں اس کی دلہن ہوں, وہ میرا دلہا ہے, مجھ میں کوئی داغ تو نہیں, مجھ میں کوئی جھری نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیٹھ کے فیشل کرتے رہیں, ہم جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ کریمیں لگاتے رہیں, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اندر ہمارے کوئی داغ تو نہیں, ہمارے جو اندر ہے, جو ہماری سوچوں میں جو ہے, ہمارے کاموں میں جو ہے کوئی داغ نہیں ہے, کوئی جھری نہیں ہے, اور ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار ہیں. آمین. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.